codomain today, Safa. So we'll understand what codomain is. More clearly, we will understand today. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा फंक्शंस के बारे में बताया था कि what does functions do is they basically connect two sets first of all and they also connect two variables, right? सिर्फ और सिर्फ सेट्स को ही कनेक्ट करने का काम नहीं करते हैं फंक्शंस, दो वेरिएबल्स को भी कनेक्ट करते हैं. जनरली वो दोनों वेरिएबल्स x और y होंगे. x विल बी कंसिडर्ड एज एन इनपुट एंड y विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटपुट, राइट? तो first of all, let's understand how would we write exercise 2.2 question number 9. Aisha, can you please tell me the question? We'll solve this. Just tell me the question. अच्छा, रुक 2 मिनट, मैं भी खोलता हूँ, ओपन कर लूँगा बुक. बताएगी मेरे को आयशा एक बार क्वेश्चन. मेरे को नहीं है एक्चुअली, मेरे पास क्वेश्चन मैंने अभी गूगल से डाउनलोड ही किया है, तो उसमें तो कुछ अलग ही तरीके से क्वेश्चन दिया. ये वाला क्वेश्चन है क्या, मॉड एक्स वाला? R3 is equals to x, comma mod x is a real number, is a relation. या फिर कौन सा क्वेश्चन है, एक बार मेरे को बता. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? Either you send me the image or tell me the question. फहद बुक रखा है अभी एनसीईआरटी? अच्छा. Safa, do you have NCERT right now? Yes, sir. Please tell me question number 9 from exercise 2.2. Question number 9. Let R be the relation on Z. You want me to type it, sir? No. You just tell me. R is a relation. Let R be the relation on Z defined by R equals set of all A comma B. Okay. A comma B belongs to Z. I mean integers. Or not integers. Okay. Not integers. No. It belongs to integers, sir. A comma B. Okay. And A minus B is an integer. Then it says to find the domain and range of R. So we denote integer by Z, right? Sorry, I didn't get you. Integers we denote it by Z, right? Z, either Z or I. You can use anyone. Either and it says, Z or yeah, it says to find the domain and range of R. Okay. So what we have been doing till now was we have been given a set, right? And we have to write a relation on that set. But in this question, the first change is that we are not provided with a regular set, your finite set. This time we have been provided an infinite set of integers. So what the question is saying, it says that you have to form a relation R of A comma B. You have to take two numbers such that both numbers belongs to integers, and A minus B is also an integer. A minus B is also an integer, right? So basically,
ये हमें ये समझना, ये समझाना चाहता है कि a माइनस बी इंटीजर कब होगा। a माइनस बी इंटीजर किस तरीके से हो सकता है। एंड सफा, please tell me whether I have written it correctly. A comma B belongs to Z or I. Is this given? Yeah, it's mentioned. A and B both belongs to Z. And then there's like a colon, and then it's, yeah, A comma B. Both of them belongs to Z. Indeed. Okay, cool. So this should be like this, something like this. A comma B belongs to Z, and A minus B is an integer. This should be the proper question, I guess. Yes. So we have to tell them what's the domain and range of this relation. तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि a माइनस बी इंटीजर कैसे होता है। तो लेट्स से उसने हमें चॉइस दिया है कि आप a को भी कोई भी इंटीजर ले सकते हो, b को भी कोई भी इंटीजर ले सकते हो, और a माइनस बी एक इंटीजर आना चाहिए। आपको वही इंटीजर्स लेने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन इंटीजर है, राइट? यस सफाई गॉट इट, राइट। सो सबसे पहली चीज, तो अगर आप कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, लेट्स से, चलो कोई भी लेके देखते हैं एक बार। लेट्स से a is 1 and b is 0. These are two integers. हम इनकी चॉइसेस चेंज भी करते रहेंगे, बहुत सारी चॉइसेस लेंगे अभी, बट एक मैं चॉइस लेके दिखा रहा हूं। तो अगर a को 1 लेता हूं, b को 0 लेता हूं, तो मेरे पास a माइनस b की वैल्यू 1 ही तो आएगी, विच बिलोंग्स टू एन इंटीजर, राइट? चलिए मैं a को मान लो 1, b को सपोज 1 कर दिया होता, तो a माइनस b की वैल्यू क्या आती? 1 माइनस 1, which is 0, which also belongs to an integer. So in fact, if I take any integer as a and any integer as b, so a minus b will always be an integer. या तो नेगेटिव इंटीजर होगा, या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, या तो 0 होगा। अदर देन दैट कोई आंसर ही नहीं आएगा आपका। अगर a और b दोनों इंटीजर है हमेशा, तो उनका सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर ही होगा। तो लेट्स से मैंने a को 1 लिया, b को 2 लिया, तब a माइनस b मेरे पास आ रहा होगा -1, which also belongs to an integer. So if I subtract two integers, the answer will always be an integer. ये चीज आपको पहले अपने आप क्लैरिफाई करना होगा कि whether it's true or not. You have to take some examples and then verify this relation on them. If it's coming, I mean integer in every case, तो आप easily बोल सकते हो कि हाँ जी ये हमेशा true होगा, and then you have to find the logic कि क्या हम करने जा रहे हैं। तो logic is, if a belongs to an integer, b belongs to an integer, यानी कि हमारे पास एक कोई इंटीजर है a, it can be anything, either it is positive or negative or 0. Then we have b, some integer, either it's negative or positive or 0. Then a minus b will always belongs to an integer. Difference of two integers is another integer. It doesn't matter that it's negative or positive or 0, but it will always be an integer. So if a belongs to z, b belongs to z, then a minus b must belong to z, which implies that R contains the Cartesian product of integers. R के अंदर सारे प्रोडक्ट आते, सारे आंसर आ रहे होंगे, जितने भी पॉसिबल आंसर्स आप इंटीजर्स से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 1 1 2 1 3, आप a को 1 फिक्स करेंगे, b की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। नाउ हाउ मेनी इंटीजर्स डू वी हैव? इनफाइनाइट। तो हम इस रिलेशन को ऐसे शो करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। आप a को 1 लेंगे, b को कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। आप a को 2 लेंगे, b को कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। आप a को 3 लेंगे, b को कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। a को 0 लो, फिर से कोई इंटीजर। तो हर एक इंटीजर a के लिए और हर एक इंटीजर b के लिए ये आंसर हमेशा सेटिस्फाई करता रहेगा। तो यहां से सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि r क्या बनेगा। r बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। आप एक सेट इंटीजर का उठाया आपने, and you have taken second set of you have taken sets of integers, and then you are multiplying them. So what should be the domain? What should be the domain of R? What should be A?
A can be any integer, right? And B can also be any integer. So domain of this relation R is the set Z integers, and range of this set is also an integer. क्योंकि आप फर्स्ट वाले नंबर को भी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं. You can take any integer and you can take any integer as B. So if A and B can be any integer, A minus B will always be an integer. Hence, A can take any integral value and B can also take any integral value. Means that domain is the set of integers as well as the range is also a set of integers. आयशा, ये बात समझ आई? क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir, समझ में. बस हमें ये पहचानना था कि क्या ये हर इंटीजर के लिए ट्रू होगा कि नहीं होगा. हाँ, बिल्कुल होगा. अगर आप दो इंटीजर को घटाएंगे तो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा. And it means that the domain and range of this relation is always an integer. Okay, any more problem? Okay, Safa, you wanted to ask about codomain, right? Yeah, can you please explain codomain? Yeah. So, what you know that did you understand this question? First Yes, sir. ठीक है. तो domain है हमारे पास integers, range भी है integers. Now the codomain is the set on which this relation was defined. Now the relation was defined on the set of Z. I mean A and B could have taken any value of Z, right? Yes. Sir. So B, the possible answers of B is codomain. So what have been the possible answers of B before solving the question? What was the possible answer for B? Z, set of integers. Z, right? Z. Okay. And what is the answer after solving the relation? Like, what's the range? Z. That is also G, right? Yeah. So in this particular case, codomain and range are same. कोडोमेन वो सेइंग कि आपके पास पॉसिबल आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं, जो कि मुझे स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि a, b बिलोंग्स टू z, माने b का वैल्यू b कैन टेक एनी इंटीग्रल वैल्यू. जब हमने सॉल्व किया तो b ने सारी इंटीग्रल वैल्यू ले भी ली. पहले बोला गया था कि आपके पास पॉसिबल आंसर्स सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, बट जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि सारे के सारे इंटीजर्स आंसर हैं भी. तो इसका मतलब कोडोमेन होता है जो पॉसिबल आंसर्स ऑफ b होते हैं. यानी कि जो स्टार्टिंग में आपको शुरू करने के लिए दिया होगा क्वेश्चन, स्टार्टिंग में जो सेट दिया होगा जिस पे आप रिलेशन लिखने जा रहे हो, तो वो होगा कोडोमेन. और रेंज होगा जो आपका फाइनल आंसर आया. ये डिफरेंस होता है. इन दिस केस कोडोमेन इज आल्सो जी. We find codomain at the beginning of the question? No, we don't find codomain. Codomain will always be given. We cannot find codomain. It's like, but at the beginning we can understand what is yeah. In the beginning, only we can understand what is the codomain of this question. But for domain and range, we need to find out the whole relation. चलिए फिर अभी शुरू करते हैं थोड़ा फंक्शन. तो क्या किसी के पास पाइथन है? एनीवन स्टडीइंग पाइथन? मैंने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था शायद. ओके, सफा, एनीवन एल्स? अच्छा, फहद भी है, ठीक है. तो पाइथन का यार मैं रेफरेंस इसलिए लेता रहता हूँ क्योंकि पाइथन में आपको यही सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो मैं बता रहा हूँ आपसे. फंक्शंस पाइथन में भी आएगा. तो फंक्शन ऐसा कुछ फंक्शन क्या है? फंक्शन के दो तरीके के फंक्शन होते हैं. आप सबसे पहले तो ये बात समझो मेरी. एक होते हैं इनबिल्ट फंक्शन, राइट, और एक होते हैं आर्टिफिशियल फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं, मैन मेड फंक्शन. तो इनबिल्ट फंक्शन कुछ ऐसे फंक्शन है जो हम बता रहे हैं आपको कि ये फंक्शन है. अब फंक्शन बनाने के लिए पहले तो सबसे पहले हम यहां से बात स्टार्ट करते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं. तो हम फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे. ये होगा उसका नाम, any name you are giving to the function. Let's say I want to give my function f. I'm naming my function as f. So f is a function from a to b. F is a function from a to b, right? Hello Fatima. Is this your first class? Oh, okay. So this is basically f is a function from a to b, or you can also write this as a
to B function f from A to B. But more common notation is this. This is a popular notation. You'll see any function written like this. So this says f is a function from A to B. Now you need to understand what this A is and what this B is. Okay. Now this A is said to be the domain of f. And this B is your codomain of f. So B is basically codomain. What's the definition of codomain is set of all possible outcomes. Set of all possible outcomes. So B will tell you what are the possible answers. B will not tell you all the answers of the function. B will tell you what are the possible answers. Like जो B सेट दिया हुआ है उसके बाहर आंसर नहीं होगा कुछ भी, बट हम ये भी नहीं करें कि B के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आंसर होगा ही होगा. नहीं, हमें नहीं पता वो आंसर होगा कि नहीं होगा, बट हमें ये जरूर पता है कि इससे बाहर आंसर कुछ नहीं होगा. B के अलावा कोई आंसर नहीं पॉसिबल. Set of all possible outcomes. Now you need to understand first of all these two words. What is the domain of function and what is the codomain of function? Oh, sorry, range of function. चलो अभी हम तो डोमेन हमारा क्या था, बेसिकली इनपुट था. मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख के भी छोड़ देता हूं, आपको हमेशा इसको इनपुट की तरह देखना है. अब इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराना चाहूंगा. एक दो क्वेश्चन देखते हैं. मैंने आपको एक दिन ये क्वेश्चन दिया था f(x) = 1/x-1. चलिए मेरे को बताइए x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, यानी कि मैं इसको इनपुट 2 देता हूं, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, आउटपुट क्या मिलेगा? So, can you please repeat what you said? If x is 2, if I give this function input as 2, what's the output? F2 is equal to 1. F2 is equals to 1, right? So if input is 2, output is 1. This is the set of input and this is the set of output. If I give input 3, what's the answer? If input is 2, 1/2. If input is 1, what's the answer? Not defined. Not defined, right? So we did not get any answer at this input. अभी हमने उस दिन इस बात की थी कि फंक्शन वो होता है, फंक्शन में कंडीशन लगता है कि हर इनपुट का आंसर होना चाहिए. अभी यहां पे देखो, इस इनपुट पे आंसर नहीं मिला मुझे. क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरे पास ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर डिनोमिनेटर को मैंने 0 कर दिया. डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. एंड इन एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आप अभी पढ़ो, 12th में पढ़ो, कभी भी पढ़ो, in any mathematical expression you cannot make denominator 0. If it is becoming 0, you have to check your input whether it's the right input or not. So whenever you are getting the answer or output as not defined, you cannot put that value, you cannot give the function that input. So domain का मतलब ये है कि all the values of x, वो सारे इनपुट जिसपे भी आपको आंसर मिलेगा वो सब डोमेन है. अभी वो मिलेगा कैसे, आप कैसे डोमेन फाइंड आउट करेंगे हम, वो अभी थोड़ी देर बाद की बात है. बट सबसे पहले तो डोमेन की डेफिनेशन, all the values of x for which fx is defined.
फॉर विच fx इज डिफाइंड, वो सारी वैल्यूज x की जिसके लिए fx डिफाइन हो सकता हो, यानी कि जिसके लिए आपको आंसर मिले। तो आपका डोमेन हमेशा वही रहेगा, आप इनपुट्स हमेशा वही देंगे जिस पर आपको आउटपुट मिलेगा। मैं अभी आपको इसके एग्जांपल भी दिखाता हूं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी इनपुट दे सकता हूँ। इसको देखो ध्यान से, आप इसको 1 नहीं रख सकते बस, क्योंकि जैसे ही आप इसको 1 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। उसके अलावा आप कुछ भी रखेंगे कभी नीचे 0 नहीं बनेगा, तो आंसर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, छोटा बड़ा कुछ भी मिले, मेरे को इससे मतलब नहीं है आंसर क्या मिल रहा है, मेरे को इस बात से मतलब है वेदर आई एम गेटिंग द आंसर और नॉट। So in this case, x can take any value other than 1. So the domain of this function is all real numbers except 1. You can give this function any input other than 1. Now the question arises, how to find domain? This is the question you will be getting in your exam. How to find domain? You will be given a function and then you will have to find the domain of that function. आपको ये ध्यान रखनी है कुछ बातें जो मैं अभी बताने वाला हूं। तो इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा मेथड्स टू फाइंड डोमेन के लिए कि कोई भी फंक्शन या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का आंसर मुझे कब नहीं मिलेगा। When will I not get the answer? Either the denominator is 0. If in any mathematical expression your denominator is 0, you will get the answer not defined. So first of all, if there is a variable involved in your denominator, you cannot put the value which makes your denominator equal to 0. So the first rule to find domain is denominator should not be equal to 0. अगर आपको कहीं भी डिनोमिनेटर दिखता है और डिनोमिनेटर के अंदर कोई वेरिएबल आ रहा है, तो आप वेरिएबल को इस तरीके से पुट करिए कि डिनोमिनेटर 0 ना बने कभी भी। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. Denominator of any mathematical expression. The second rule is, can I remove this top line? Now the second rule is, sorry, my bad. So we were studying functions. Second rule अभी मैं बता रहा हूँ पहले, उसके बाद में इसका रीजन बताता हूँ. Second rule is value inside even root या expression inside even root. I should write it expression. Expression inside any even root should be greater than equal to 0. I'll tell you everything. Now the third rule is, I'll explain them. मतलब आप ये रुको पहले लिखते रहो. If fx has domain d1, gx if fx has domain d1, gx has domain d2, then fx plus minus gx and fx into gx has domain d1 intersection d2 and fx upon gx has domain d1 intersection d2 except the values where gx is equals to 0. We should write it like this. All the alphas
where g alpha is equals to 0। आप सबसे पहले ये चीजें लिख लीजिए। फर्स्ट रूल तो बहुत सिंपल था समझना, सेकंड और थर्ड रूल के बारे में अभी हम बात करते हैं। और एक और वर्ड के बारे में बात करते हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। तो फंक्शन कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया होगा आपको, जनरली आपको बोला जाएगा इसका डोमेन निकालो और इसका रेंज निकालो। जैसे कि ये फंक्शन दिया गया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1। अभी आप इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, अभी तो आपको कहेंगे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया। अब वो बोल रहा है कि ये फंक्शन है तो इसका डोमेन निकालिए। तो डोमेन के लिए आपको दो कंडीशन पे बहुत ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड वाली पे। थर्ड वाला तो कभी कभी लगेगा। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पे आपको ध्यान रख, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन पे आपको ध्यान रखना होगा। हाँ जी, कैन आई रिमूव दिस नीचे वाला पार्ट? कोई बचा है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया, आपने देखा वहां पे कुछ कुछ इनपुट आप देते जा रहे थे, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता जा रहा था, राइट? एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1 की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे आपने देखा कुछ कुछ आंसर्स आपको मिल रहे थे। अभी हमारे पास ना जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रियल वैल्यूड फंक्शन। सबसे पहले तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जिनका आंसर हमेशा रियल नंबर आता रहे। वैसे तो आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, बट अभी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, अभी सिर्फ आपको रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ाए जा रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन छोटी सी है, ऑल द फंक्शंस इन विच द आउटपुट इज ऑलवेज अ रियल नंबर, यानी कि आपका आंसर हमेशा रियल नंबर आता रहना चाहिए, आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। मोस्टली सारे फंक्शन आप ऐसे ही देखोगे, जितने भी देखोगे कभी आप देख भी नहीं रहे। इसका मतलब ये है, छोटा सा ऐसे समझो इसको कि जैसे लेट्स से मैंने आपको एक बोला एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स इज अ फंक्शन। मैं आपको कह रहा हूँ ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स है, ये एक फंक्शन। तो आप मुझे इसका डोमेन बताइए। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, आपको बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिए जाएंगे, आपको उनका डोमेन निकालना होगा। ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स। मैं इसका डोमेन निकालना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसका इनपुट निकालना चाहता हूँ कि मैं इसको कौन कौन सा इनपुट दे सकता हूँ। मैं इसको सिर्फ वही इनपुट दे सकता हूं जिस पे इसका आंसर है। एक बात तो मैंने देखा कि अगर मैं x को कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू रखता हूं तो आंसर सीधे सीधे मिल ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने x को 1 रखा तो आंसर मिल जाएगा 1। मैंने x को 4 रखा तो आंसर मिल जाएगा 2। मैंने x को 9 रखा तो आंसर मिल जाएगा 3। 16 रखा तो 4। इसी तरीके से कुछ 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 हर वैल्यू पे मेरे को, हर पॉजिटिव वैल्यू पे कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है। इफ आई पुट x 0 तो आंसर 0 मिलेगा, बट इफ आई पुट x नेगेटिव, लेट्स से -4, तो आंसर मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। No, Sapan, no. I am explaining these 2 points. So fx is equals to root x। अगर मैं x को पॉजिटिव रखता हूं तो इसमें फिर से मैं आपको देखो इनपुट आउटपुट का एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाता हूं। मैं कुछ कुछ इसको इनपुट देता जाऊंगा, कुछ कुछ मेरे को आउटपुट मिलेगा। तो लेट्स से मैंने इनपुट दिया 1 तो आंसर मिला 1, इनपुट दिया 0 तो आंसर मिला 0, इनपुट दिया 4 तो आंसर मिला 2, बट इनपुट दिया -4 तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ -4, जिसको हम लिख देते थे अगर आपको याद हो तो 2i। जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो पिक्चर में आ जाता है आई। आंसर इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आई, आयोटा। सो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कैसे ही आया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √4 इंटू रूट ऑफ -1
this root of -1 is iota I and this root 4 is 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2i, which is clearly a complex number. वो सारे नंबर्स जो i कंटेन करते हैं, यानी कि जो भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स से बने हैं, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर बोले जाते हैं. अब यहां से आप डोमेन समझिए. आपका काम है, जब आप डोमेन निकालने जा रहे हैं, तो आपका काम है हमें ऐसा इनपुट देना है जिसपे आंसर आए, ए जिसपे आंसर आए, एंड बी जिसपे आंसर सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर है, क्योंकि आपके सिलेबस में है रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि आपका आंसर हमेशा रियल नंबर होना चाहिए. और आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर कब आता है? जब हम रूट निकालते हैं. किसी भी वैल्यू में अगर हमने रूट लगा दिया तो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा. सभी लोग सिर्फ रूट को ध्यान रखें. सफा तुम समझ लो ये इवन रूट का क्या मतलब है, और लोगों को समझने की जरूरत नहीं है. आपको कभी इवन रूट पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिंदगी में. नो, यू विल नॉट फेस एनी क्वेश्चन based on the term even root. Only Safa can understand this. No, everyone can understand it, but only Safa. So for Safa, it is necessary to understand what is even root. Even root is something which has the power, the power in fraction, and denominator is an even number. So if I take 1/2, तो 1/2 में मेरे पास डिनोमिनेटर में इवन नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये एक इवन रूट है. बट इफ आई टेक 2/3, तो 2/3 में मैंने देखा कि मेरे पास डिनोमिनेटर है 3, यानी कि ऑड नंबर है, तो दिस इज एन ऑड रूट. समझ सब सकते हैं, बट आपके काम नहीं आएगी ये चीज. आपको इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो अगर मैंने लिखा 5/6, तो बताओगे मुझे इवन रूट है कि ऑड रूट है? इवन रूट होगा. अच्छा चल ये बता, 2/5. ऑड रूट. चल ये बता, 3/6. इवन रूट. नहीं. अच्छा चल ठीक है, इवन होगा. 2/6 ऑड रूट. ऑड रूट, क्योंकि ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना है. जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी फ्रैक्शन में होनी चाहिए, और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऑड होना चाहिए, तो ऑड रूट हो जाएगा. सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इवन है, तो इवन रूट हो जाएगा. सिंपल. ठीक है जी. तो रूट के अंदर जब भी आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. यानी कि तभी हमने बोला कि जब भी आपके पास रूट वाला एक्सप्रेशन आ जाए, तो उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए. ठीक है. और तीसरा क्या बोल रहे हैं वो अभी समझेंगे जब क्वेश्चन के साथ कर रहे हो. आप कुछ डोमेन निकालते हैं. चलिए ये काम हमारा इंपॉर्टेंट है. अभी हम नेक्स्ट हाफ एन आवर के आसपास कुछ डोमेन निकाल रहे होंगे फंक्शंस के. आप मेरी बात का ध्यान रखते जाइएगा, बहुत आसानी से आप डोमेन सीख जाएंगे. और एक क्वेश्चन आएगा पक्का डोमेन पे. दिस इज नेसेसरी. डोमेन या रेंज, और मे बी बोथ. हाँ जी, कैन आई रिमूव दिस? सभी लोगों ने लिख लिया? कोई बचा है तो प्लीज टेल. ये थ्योरेटिकल पार्ट था. मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, एक्सप्लेन करने की कि किस तरीके से हम फंक्शन को देख रहे हैं. बट अगर आप इसमें बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे अभी भी, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको काम मैथमेटिकल करना है. जो मैं अभी कराने वाला हूँ काम आपको सारा वही करना है. ठीक है जी, चलिए. ओके चलिए फिर, फाइंड द डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस. क्वेश्चन लिखता हूं.
चलिए कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। f(x = x²। जब भी मेरे को डोमेन का क्वेश्चन आएगा मैं दो चीजें चेक करूंगा, एक डिनोमिनेटर और एक रूट। सिर्फ दो चीजें, एक डिनोमिनेटर एक रूट। अगर तो सबसे पहले मैंने चेक करा f(x = x², मेरे को गिवन है। मैंने चेक करा क्या इसके पास डिनोमिनेटर है, नहीं कोई डिनोमिनेटर नहीं है। क्या यहाँ पे रूट इन्वॉल्व है, नहीं यहाँ पे रूट भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है कि आपके पास रूट भी नहीं है और आपके पास डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो आप बहुत इजीली उसको बोल सकते हो कि इसका मतलब हो गया कि कोई कंडीशन ही नहीं है, आप x को जो चाहे वो रख सकते हैं। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, यानी कि आपका जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर्स। इस बात का मतलब ये है कि आप इसको कोई भी रियल नंबर इनपुट दे सकते हैं। और अब आप सोच के देखो इस बात को कि लेट्स से आप x² में कुछ भी वैल्यू रखते हो, आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हो उसको, आपको आंसर मिलता रहेगा। 0 पे आंसर 0 मिलेगा, नेगेटिव्स पे भी आंसर पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि x² एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी इनपुट दे सकते हैं फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप जो वैल्यू देना चाहेंगे वो दे देंगे। पता कैसे चला? ना ही तो इसके पास डिनोमिनेटर था और ना ही इसके पास रूट है, यानी कि कोई कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सब वैल्यूज इसको दे सकते हैं। हाँ जी, पूछते जाइएगा जहां पर भी डाउट हो, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क मी एनीथिंग। मैं सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचा। तो सेकंड क्वेश्चन में मैं फिर से पहुंचा, मैंने कहा डिनोमिनेटर है, हाँ जी है। अगर डिनोमिनेटर है तो कंडीशन लगा दीजिए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो भी डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दिया गया है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहां से मुझे पता चला कि x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 1 के बराबर। आप -x को इधर लेके आएंगे +x हो जाएगा, यानी कि 1 नॉट इक्वल टू x, जिसको मैं x नॉट इक्वल टू 1 भी बोल सकता हूं। कहने का मतलब इस बार आप x को 1 नहीं रख सकते, 1 रखेंगे तो देखो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। रूट इसके पास है नहीं, यानी कि सिर्फ आपको एक ही कंडीशन लगाने की जरूरत है, जिसका मतलब आंसर मिल जाएगा। डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, डोमेन बिलोंग्स टू R, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट दिस इज माइनस या एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हाँ जी, पूछते रहो सफा, बोलो। Sir, can it be one like a greater number, 1 - 3? So then in the denominator, it would be negative, and we'll Yes. take the negative sign up towards the numerator. So yes, yes. If it's 3, then it will be 2 upon -2. So the answer is -1. Answer can be negative, positive, 0, anything. Not it should not be complex number, and it should not be not defined. These are the answers. Here we can put any input other than 1, any real number other than 1, because at 1 we would not be able to get any answer. Third, f(x = √x). Now again, दो कंडीशन, डिनोमिनेटर है नहीं, बट रूट है इस बार। अगर रूट है तो दिस शुड बी x greater than equal to 0। बस सिर्फ यही कंडीशन है, x greater than equal to 0। यानी कि डोमेन जो होगा, इस बार ये कह रहे हैं हमसे कि आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव नहीं रख सकते। दिस शुड बी द आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने देखा दो चीजें बस, डिनोमिनेटर है। देखो अभी तक मैंने आपको पहली कंडीशन में मैंने आपको कुछ भी कंडीशन नहीं दी। अगर डिनोमिनेटर भी नहीं है, रूट भी नहीं है, तो आप जो चाहे वो रख सकते हैं फिर तो। सेकंड कंडीशन में मैंने आपको, सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको डिनोमिनेटर वाली कंडीशन दी। थर्ड में मैंने आपको रूट वाली कंडीशन दी, सिंपल, बहुत सबसे सिंपल रूट दिया मैंने आपको। फोर्थ वाले में मैंने थोड़ा सा रूट को चेंज कर दिया,
पर रूट वाली ही प्रॉब्लम है ये भी। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने देखा रूट है, रूट के अंदर एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 2 - x दिया हुआ है, वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या इसके पास डिनोमिनेटर है? नहीं, यानी कि मेरा काम सिर्फ यहां से हो जाएगा। तो इससे मुझे मिला 2 > x। आप -x को यहीं पर रखिए, उधर ले जाइए। तो 2 > x only means that x < 2। Either you say 2 is > x, or you say x is lesser than or equal to 2. Both are same. So the domain is -∞ to 2. Just remember this. See, in the first question, x was > 0. x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब कितनी बड़ी? इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। 0 से बड़ा तो अप टू इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। आप ऐसे रियल नंबर लाइन पे बना लिया करो। ये -∞ है, ये +∞ है, यहां पे कहीं बीच में 2 आ रहा है। वो कह रहे हैं 2 से छोटा। कहां तक? -∞ तक। पिछली बार उसने बोला था 0 से बड़ा। कहां तक? +∞ तक। यस सफा? Sir, if the case was 2 + x, so we couldn't take. तो फिर x को हम उधर नहीं लेके जाते, We 2 can't को take लेके जाते। minus. I mean, No, in that case we would have taken 2 on the right hand side. okay. x greater than equal to -2 हो जाता। So in that case, domain would have been -2 to infinity. But in this case, x is lesser than equal to 2 means that x can take any value lesser than equal to 2. Lesser than equal to 2. So this should be closed interval. फहद, अब्दुल्ला, ये बात समझ आई? यस यस सर। सफा क्लियर है? Yes, sir. चलो फिर अब हम थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम करने वाले हैं। मतलब प्रॉब्लम्स तो देखो ये तो बहुत ही बेसिक होंगी। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स तो आप इससे ही सॉल्व कर ही लेंगे, आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर ये सब चीजें करेंगे। बट मैं चाहता हूं कि आप इस पे थोड़ी प्रॉब्लम्स लगाएं, क्योंकि डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन सर्टेन है सीबीएसई में भी और जेई में भी। जेई में भी मतलब डोमेन रेंज के बारे में काफी कुछ बातें करी जाती हैं। तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट ईयर फिर से काम आएगा डोमेन एंड रेंज, ध्यान रखना। आपका यही क्वेश्चन आता है 12th क्लास में, बोर्ड्स में भी, और डोमेन रेंज से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है मतलब। और 11th में भी डोमेन रेंज से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चले जी नेक्स्ट चीज पे पहुंचे। अब इस बार हमने देखा, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर पे गए। तो यस, देयर इज अ डिनोमिनेटर प्रेजेंट इन द क्वेश्चन व्हिच इंक्लूड्स x एज वेल। तो हमने कंडीशन लगाई फर्स्ट, x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, which means that x should not be equal to -1। एक कंडीशन तो हमें ये मिली कि आप x का वैल्यू -1 नहीं पुट कर सकते, ये हमें बोला डिनोमिनेटर ने। बट अभी जब हम क्वेश्चन पे वापस गए तो उसने कहा मेरे पास तो रूट भी है, आप रूट वाली कंडीशन भी लगाइए। एंड what was the condition for root? That any expression which is inside the root should be greater than equal to 0, should be positive or should be non-negative. So here 3x - 2 is greater than equal to 0. If 3x - 2 is negative, then the answer would be complex number, because root of negative is a complex number. So 3x - 2 greater than equal to 0. आपने inequality solve करना आप जानते हैं, हम कर चुके हैं already. So this should be 3x greater than equal to 2, माने x greater than equal to 2/3. So we can say that the domain is actually, एक सेकेंड, अभी आपके पास दो कंडीशन थी, एक डिनोमिनेटर वाली और एक रूट वाली। हमने दोनों से आंसर निकाल दिया। एक बोल रहा है x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, और एक बोल रहा है टेक एनी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3।
अभी पहले आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए, यहां तक कि कंडीशन पे बात कर लीजिए कि आपको ये समझ आया कि नहीं। एक डिनोमिनेटर वाली कंडीशन, एक रूट वाली कंडीशन, दो ही कंडीशन बोली है। हर क्वेश्चन में यही दो कंडीशन पे बात करता चलूंगा सिर्फ। आपको यू हैव टू जस्ट चेक दीज टू कंडीशंस वेदर दे आर फुलफिलिंग और नॉट. They will tell you what is the domain of the given question. I will not leave these two concepts. I will only talk about these two concepts. And for domain, you just have to understand these two things, that neither the denominator should be 0 nor the value inside any root is negative. So the value inside any even root should be greater than equal to 0 and the expression in denominator should not be equal to 0. आपने दोनों कंडीशन लगाया, दोनों से आपको कुछ कुछ आंसर मिला. Just observe this and ask me if you have any doubt. Okay, if you don't have any doubt, then tell me one thing. What should be the input? What should be the domain of this function? We have two conditions. We have already found out. हाँ जी फाहद बोलो बोलो. Sir, x should be greater than or equal to 2/3. तो -1 का कोई रोल नहीं होगा क्या फाहद? नहीं, क्योंकि जब x 2/3 से ग्रेटर होगा तो -1 होगा ही नहीं. एग्जैक्टली. सफा ये बात समझ आई? क्या बोला इसने? Sir, you're asking me? Yeah. Did you understand? Yeah, so I understand x cannot be equal to -1 and x should be greater than equal to 2/3. So the domain should be greater than equal to 2/3, right? Yeah. Okay. अब्दुल्ला ये बात समझ आई? Yes, sir. तो ये देख -∞ से +∞ तक पूरी नंबर लाइन होती है. 2/3 माने के 0.66 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा और -1 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा. ये कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रही है आप 0.66 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन कह रही थी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो हम कह रहे हैं जब हमारी वैल्यू 0.66 से बड़ी होगी तो -1 तो कभी खुद ही नहीं होगी. यानी कि डोमेन आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2/3 to infinity. अब जरा 6th क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो. बताओ मेरे को क्या है डोमेन. Why cannot we take numbers like -2, -3, 6? Why? Are you talking about why? Yeah. Why? तो अभी we can't talk about why. Like, sir, I understand we take 2/3, infinity. That's because the value of x is supposed to be greater than 0.66. Yes. But we here, I didn't understand why we cannot take negative numbers other than -1. Because, okay, give me any negative number. Give me one negative number, whatever you want. -2. -2. Put it in the function. Sorry? Put it in the function. Put it in the given function, fifth function. What's the? Okay. It's actually not like fulfilling the function. Yes, it's not fulfilling the condition of root. If you put -2, you will get root of -8. Yeah. Which will give you a complex number. But your function cannot have output as complex numbers. So the condition of root, the square root, was telling you to take any value greater than or equal to 2/3. Okay, sir. So that is why you cannot take any value lesser than 2/3. It's not saying that take any negative or positive x. It's not telling you about x. It's just telling you that whatever the expression inside root is given, that should always be non-negative. So choose x such that the expression inside the root is positive.
See, in fourth question, you get the domain minus infinity to 2. You took almost all the negative values of x because that wasn't affecting your condition of root. Yeah. But in fifth question, the domain is 2/3 to infinity. Even some of the positive numbers are not coming in this 0 to 2/3 wala portion is not there. So if you put 0.5 as x, you will not get positive root. Okay, sir. I understood. Yeah. So now you have to solve sixth. Try करो सभी लोग, देखते हैं होता है कि नहीं. Sir, x would be from 1 to infinity, 1 included, except for 2. Yes, correct. वही दो कंडीशन डोमेन के लिए. अभी बस इससे एक टफ क्वेश्चन बचता है. अभी तुम लोग सारा क्वेश्चन कर सकते हो डोमेन का. एक क्वेश्चन बचता है जिसके लिए आपको एक रूल सीखना पड़ेगा. मैं भी सिखाता हूँ थोड़ी देर में वो. पहले हम इससे आगे बढ़ते हैं. जरा काम की चीजें खत्म कर ले. बेसिक एनसीईआरटी पूरा खत्म करते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन करो, फिर एक दो क्वेश्चन और देता हूं, तब आप डोमेन सीख जाएंगे कंप्लीटली. तो वही यार, सिक्स्थ में दो कंडीशन है. एक होगा x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. यहां से आपको पता चला x कैन नॉट टेक वैल्यू 2. This is your first condition. Now the second condition is that x minus 1 should be greater than equal to 0. रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन which is x minus 1, it should be non-negative. तो मैंने यहां से बोला x should be greater than equal to 1. So the condition of root is saying that x should be greater than equal to 1. आप x को 1 या 1 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं. But condition of denominator was saying that you cannot take x2. Now 2 is coming in between 1 to infinity. 2 is already included in second condition. Now understand the difference between fifth and sixth question. In fifth question, your denominator condition was redundant, useless. You cannot make your denominator 0 because you cannot have input as -1. It was already excluded in second condition. But in sixth question, your denominator condition is valid because this time denominator is becoming 0 at x is equals to 0, at x is equals to 2, which is included in your second condition because second condition says that you can have any x greater than or equal to 1, which also include x is equals to 2. तो इस बार फर्स्ट कंडीशन वैलिड होगा. आप इसको हमेशा नंबर लाइन पे बना के देख सकते हैं. मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कंफ्यूजन होता भी है तो कंफ्यूजन अभी होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अभी तो हम बहुत इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं. जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा कंफ्यूजन हो सकता है. उस कंफ्यूजन से बचने के लिए दिस इज द बेस्ट वे कि आप अपना आंसर को हमेशा नंबर लाइन पे बना के देख सकते हैं. सेकंड कंडीशन आपसे बोल रहा है x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यूज. और फर्स्ट कंडीशन बोल रहा था x 2 नहीं होना चाहिए. तो देखो 2 1 से बड़ा है तो 2 भी कभी ना कभी हो रहा होगा इसके अंदर. तो आप जब आंसर देंगे, कैन आई रिमूव दिस फर्स्ट क्वेश्चन और दिस. तो आप जब फाइनल आंसर देंगे सिक्स्थ क्वेश्चन का तो आप इस तरीके से देंगे कि डोमेन होना चाहिए 1 से इंफिनिटी -2 एक्सेप्ट 2. बस 2 नहीं ले सकता. इसका मतलब है 2 एक्सक्लूड कर दिया हमने. 1 से इंफिनिटी के बीच में 2 आता है और 2 को हम हटा चुके हैं. सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर. This 2 should be in bracket, in these curly brackets. I'm about to remove these first two questions. If you haven't written, please raise your hand. First two questions only.
Okay, then solve this. Solve these two questions. चलो पहले तुम सिर्फ ये 7th वाला सॉल्व करो, 8th में कराता हूँ। आंसर आप मेरे को चैट पर भेज सकते हैं। करेक्ट है, बात गुड। 8th कर, ट्राई कर। Safa Abdullah, what should be the answer for question number 7? I'm typing the answer, sir. Okay. Okay. अब्दुल्ला, 2 कंडीशन बस, दोनों को याद रखो, एक डिनोमिनेटर और एक रूट। करेक्ट है फाद, गुड। करेक्ट है सफा, गुड। 8th ट्राई करो। अब्दुल्ला, 2 कंडीशन थी, एक डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, रूट लिखा हुआ है, चल तो रूट ही लिख ले पूरा, और एक के रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वैल्यू वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बात से तो मतलब ही नहीं है रूट कहां पे है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, एक जगह, 2 जगह, 4 जगह, जितनी बार भी रूट आएगा हर बार उसके अंदर वाला एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो अगले क्वेश्चन में 2 बार रूट आ रहा है, तो 2 एक्सप्रेशन अलग अलग आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करने पड़ेंगे। जितनी बार भी अलग मेरे को जितनी बार रूट दिखेगा मैं हर बार रूट वाला कंडीशन लगाऊंगा, दैट एक्सप्रेशन इनसाइड रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब भी मेरे को डिनोमिनेटर दिखेगा मैं डिनोमिनेटर वाला कंडीशन लगाऊंगा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ जी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अरे नॉट इक्वल्स टू वाला भी ऐसे ही चलता है, सेम जैसे इक्वल्स टू वाला चलता है, सारी चीजें सेम ही होंगी। स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट हट जाएगा, इधर 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, इसलिए हम डायरेक्टली बिना रूट के भी स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन को ऐसे ही शुरू कर सकते थे क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो भी 0 ही रहेगा, इधर 0 ही रहेगा और इधर रूट हट जाएगा। तो यहां से हमें कह रहा है एक्स की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। हाँ करेक्ट, गुड। और दूसरी कंडीशन में हमें बोला जा रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
अब अगर फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन करोगे तो x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन कह रही है 2 हो सकता है, बट फर्स्ट कह रही है 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो अगर ओवरऑल आंसर देंगे तो वो हम देंगे 2 टू इंफिनिटी। इस बार 2 पे मैंने देखो ओपन ब्रैकेट लगाया, इसलिए लगाया ओपन ब्रैकेट क्योंकि 2 के बराबर हम वैल्यू नहीं रख सकते। वहीं पे जब हम 8th क्वेश्चन करेंगे तो इस केस में हमारे पास 2 रूट है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, यानी कि x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एक कंडीशन, और 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए दूसरी कंडीशन। जितनी बार रूट, हर बार रूट के अंदर वाले एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखिए। यहां से मिलेगा मेरे को x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां से मेरे को मिलेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, जिसको मैं बोल सकता हूं दैट x इज लेसर देन इक्वल टू 2। अगर आप समझ सकते हैं डायरेक्टली तो वो तो बेस्ट है कि ये क्या कह रहा है। फर्स्ट वाला कह रहा है 1 से बड़ा कुछ भी, सेकंड वाला कह रहा है 2 से छोटा कुछ भी, यानी कि ओवरऑल वैल्यू होनी चाहिए 1 से 2। बट अगर आप ना समझ पाए डायरेक्टली इसको तो आप ऐसे इसको बना लीजिए, नंबर लाइन प्लॉट कर लीजिए। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, एक बार 1 पे कंडीशन है, एक बार 2 पे कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन कहती है x की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, यानी कि इधर ये सारा आंसर है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 से छोटा कुछ भी आंसर हो सकता है, देख सकते हैं आप। सेकंड कंडीशन में x लेसर देन इक्वल टू 2। आपने दोनों बनाए, जो भी कॉमन पोर्शन है दोनों के बीच में विच इज दिस, वो आंसर होगा। यही थी थर्ड प्रॉपर्टी। जो थर्ड मेथड था डोमेन फाइंड आउट करने का, वो यही कह रहा था कि लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है gx, और वो दोनों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में दिए हुए हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, आप अलग अलग दोनों का डोमेन निकालिए और इंटरसेक्शन ले लीजिए, यानी कि जो भी कॉमन पोर्शन है दोनों में वो वाला उठा लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लो। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो वो चलेगा, उसके लिए वो आंसर आपको रियल नंबर देगा। बट सेकंड वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है एक्स की वैल्यू 2 से छोटी कुछ भी रखेंगे तो चलेगा। तो अगर आप एक्स को 2 से बड़ा कुछ भी रख देते हैं तो वो इसमें नहीं जाएगा, और 1 से छोटा कुछ भी रख देते हैं तो वो इसमें नहीं जाएगा। इसलिए हमें ऐसा इनपुट लेना है जिसपे अलग अलग दोनों रूट्स डिफाइंड हो। आप x को 3 लेंगे ये वैलिड नहीं होगा, ये तो होगा बट ये नहीं होगा वैलिड 3 पे। ऐसे आप x को 0 रखेंगे, ये वैलिड नहीं होगा, ये होगा। बट आप आंसर तो नहीं दे सकते ना उस केस में भी, क्योंकि अगर ये भी वैलिड नहीं है तो फिर आंसर तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा ना। इसलिए आप हमेशा कॉमन पोर्शन निकाल लिया करो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। इसी में ही मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, यही दिस इज 9th क्वेश्चन अभी के लिए, दिस इज लास्ट वन। चलो इसका आंसर बताओ जरा। दो रूट है, अलग अलग है दोनों। अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। व्हाट इज द डोमेन?
जी, यहाँ तक आप लोग सभी लिख चुके हैं क्या? कैन आई रिमूव दिस? Yes, sir. सॉल्व 9th क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अलग लिख देता हूँ उसको जाके। And we have been asked to find the domain of this function. हाँ जी, मिला आंसर? नो सफा। अच्छा, पुट एनी वैल्यू, जो भी तेरा आंसर आया करे ना उसमें से कोई भी एक वैल्यू पकड़ के पुट किया कर। पुट करके देख, 0 पुट कर ले, चल तेरे इंटरवल में लाई कर रहा है 0, पुट 0 इन द गिवन फंक्शन। Sir, I'm getting then a wrong answer. Yes. I got that x should be less than or equal to 2 and हाँ, x should be greater, less than, greater than 3. X should be greater than 3. Am I sorry, correct? greater than, Yeah, not even equals to, because if x is equals to 3, then denominator is 0. yeah. So first condition is x less than equal to 2, and second is x greater than 3. 3. So what should be the answer? That's it. Is there some value which is greater than 3 and less than 2? No, sir. So there is no intersection between these two sets, right? So there is no value of x you can put in this function. Hence the domain is 5. The You domain cannot would be give 0. 5. 5. Empty. Just set, right? So we represent an empty set as 5. Yes, sir. So domain is 5. In this question, domain is 5. Okay, before starting this, Safa, you can start writing this. I'll explain all of this. अब्दुल्ला, पहले मेरे साथ ये समझ ले क्वेश्चन। तो फिर से दो कंडीशन लगी, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक रूट ऊपर है, एक रूट नीचे है, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इनफैक्ट यहीं पे ही कर दे नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, कंडीशन क्या कहती है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट? और रूट के अंदर वाला जो भी एक्सप्रेशन है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को मर्ज करके तू ऐसे लिख सकता है, इसको यहां से इक्वल्स टू हटा दे बस।
तो x माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यही डिनोमिनेटर भी है। जब जब रूट डिनोमिनेटर में आएगा तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखो उसको, एक ही बारी में काम हो जाएगा। तो इसने बोला x लेस देन इक्वल टू 2, इससे आंसर ये मिलेगा। इसने बोला x ग्रेटर देन 3। अब हम इन दोनों कंडीशन को बना के देखते हैं नंबर लाइन पे। 2 आएगा कहीं यहां पे, 3 आएगा कहीं इसके बाद। फर्स्ट आंसर बोल रहा है x की वैल्यू 2 से छोटी, यानी कि इधर वाली साइड पे कुछ भी आंसर आ सकता है। सेकेंड कंडीशन बोल रही है x शुड बी ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 का राइट हैंड साइड, कुछ भी आंसर आ सकता है। यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये मैंने जो बनाया है डार्क सर्कल, इसका मतलब है 2 के इक्वल है वैल्यू। ये जो ब्लैंक सर्कल बनाया है इसका मतलब है 3 के इक्वल नहीं है वैल्यू। आप क्लियरली देख सकते हो कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है दोनों का। अगर एक वैल्यू 2 से छोटी है तो वो 3 से बड़ी कभी हो ही नहीं सकती। सोचने वाली बात है। यानी कि कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब डोमेन 5 कोई डोमेन नहीं है, कोई इनपुट मैं दे ही नहीं सकता। अगर मैं 2 से छोटी कोई भी वैल्यू रखूंगा तो डिनोमिनेटर सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर मैं 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखूंगा तो न्यूमरेटर सेटिस्फाई नहीं होगा। यानी कि डोमेन बिलोंग्स टू 5। दिस इज एक्चुअली नॉट अ फंक्शन, वी विल नॉट बी गिवन सच फंक्शन, क्योंकि इसमें तो मैं कुछ इनपुट ही नहीं दे पा रहा ना। इसका फायदा क्या है? पर अभी प्रैक्टिकलिटी पे बात नहीं कर रहे हम, अभी बस हम तुम्हें मेथड बता रहे हैं कि हाउ वुड यू फाइंड आउट द डोमेन। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द डोमेन राइट नाउ, नॉट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट। वो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि इसका कोई काम नहीं होगा। दिस इज नॉट अ यूजफुल फंक्शन। Okay, now what about range? First of all, what is range? All the outputs, जो भी आप इनपुट अपने फंक्शन को दे सकते हो वो सब दे दो। उन पे सब पे बहुत सारे अलग अलग आंसर आएंगे। कितने इनपुट हैं पहले तो यही देखना पड़ेगा। बट जो भी इनपुट आप दे सकते हो उन सब पे क्या क्या आउटपुट आएगा वो सब रेंज है। रेंज इज बेसिकली योर आउटपुट। जो भी आउटपुट आया, जो आउटपुट आ सकता है, दैट इज कोडोमेन, एंड व्हाटएवर द आउटपुट इज आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, दैट इज रेंज। तो जो भी आप डोमेन, जो भी आप इनपुट फंक्शन को दे सकते हैं, उस इनपुट पे जो आउटपुट्स मिलेंगे उन सबको रेंज बोलते हैं। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू फाइंड रेंज? चलो पहले लिख लो इसको, फिर हम सॉल्व भी करके देखते हैं। हाँ जी, डन। कैन वी प्रोसीड? ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आप इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करिए। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप डोमेन फाइंड आउट कर लीजिए, रेंज फाइंड आउट करने से पहले। हमेशा मेक दिस योर हैबिट। अगर जेई में हम पढ़ाते हैं तो हम आपको और अलग तरीके से डोमेन रेंज पढ़ाना शुरू करते हैं। उसमें काफी चीजें होती हैं डोमेन रेंज के लिए। तो वहां पे आपको बताया जाता है सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अभी तो आपको सिर्फ एक ही कराया गया है, क्योंकि सीबीएसई में आपका एक से ही काम हो जाएगा सारा। बट इन नॉर्मल केसेस you will have to find out domain first to find range.
चलिए, आपको फर्स्ट फंक्शन दिया गया है 1/x-1। आप डोमेन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए फर्स्ट फाइंड डोमेन। डोमेन जब आपने फाइंड आउट शुरू करना स्टार्ट किया तो x-1 should not be equal to 0, hence x should not be equal to 1. x should not be equal to 1 यानी कि डोमेन आपको पता चल चुका है, all real numbers except 1. Now to find range, सबसे पहले तो आप fx को y कर दीजिए। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपको y इन टर्म्स ऑफ x गिवन होगा, आपको यहां से x इन टर्म्स ऑफ y लेके आना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसके लिए, x-1 को इधर लेके चला गया y के साथ और y को इधर लेके आ गया x-1 की जगह। तो x-1 is equals to 1/y, which means that x is equals to 1 plus 1/y, जिसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर और आगे चाहें तो, that x is equals to y plus 1/y. Now you have find out x in terms of y. तो स्टार्टिंग में y इन टर्म्स ऑफ x गिवन था, कन्वर्जन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. y इन टर्म्स ऑफ x गिवन होगा, यू हैव टू फाइंड आउट x इन टर्म्स ऑफ y. सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा इस तरीके से कुछ ना कुछ। इस फंक्शन का डोमेन निकालिए। इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए अब आप x इन टर्म्स ऑफ y के हिसाब से इसको सोचो। डिनोमिनेटर है मेरे पास y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहां से आई कैन क्लियरली से दैट y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Do you guys have any class today? No, sir. Safar, no. Abdullah, yes. Yes, sir, chemistry है। किस टाइम में? अभी है क्या अब्दुल्ला? हाँ सर, अभी 6 बजे। क्या? अच्छा, तो बस 2 मिनट दे दे मेरे को, अभी मैं ओवर कर रहा हूँ क्लास, ठीक है? तो यहां पे देखो मैं बोल सकता हूं y इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर यहां पे ये है, तो मैंने डिनोमिनेटर वाला कंडीशन लगा दिया। फाइंड डोमेन। सबसे पहले आप x इन टर्म्स ऑफ y निकालिए, उसका डोमेन निकालिए y इज नॉट इक्वल्स टू 0। और y क्या रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनली? ओरिजिनल तो y आउटपुट के लिए यूज हो रहा था ना, बस आपको ये बता दिया इसने। इसका मतलब रेंज कुछ भी आ सकता है एक्सेप्ट 0। y इन टर्म्स ऑफ x गिवन होगा, डोमेन निकालिए। सबसे पहले तो डोमेन निकाल लो। जब भी बोले रेंज निकालना है तो डोमेन तो निकालना ही निकालना है। फिर y इन टर्म्स ऑफ x गिवन होगा, वहां से x इन टर्म्स ऑफ y निकालिए। जब आप x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे, उस फंक्शन का डोमेन निकालिए। जो भी उस फंक्शन का डोमेन होगा ओरिजिनल फंक्शन के लिए, यानी कि जो ये ओरिजिनल फंक्शन था दिस, इसके लिए रेंज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि y तो हमारा रेंज ही था ना। तो वहां से आपको रेंज का आंसर मिल जाएगा। दिस इज द मेथड टू वर्क आउट रेंज। चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं इस पे कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है? करो क्लास। Thank you, sir. ओके।